یہ واقعہ ایک ایسی لڑکی کا ہے جو تیار ہو کر ایک ایونٹ پر جاتی ہے۔ جب وہ اس ایونٹ پر پہنچتی ہے تو اسے وہاں ایک عورت نظر آتی ہے جو پورا ایونٹ اس پر نظریں جمائے اسے بری طرح گھورتی رہتی ہے۔ رات کا فنکشن ہوتا ہے جو 2-3 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ گھر آتی ہے تو اس کے کچھ دن بعد وہ عورت بھی اس کے گھر آ جاتی ہے، اور اس کے بعد آخر میں ڈیرہ غازی خان سے ایک ایسا واقعہ وصول ہوا ہے جو کافی حیران کر دینے والا ہے۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں محمد رضوان خالد اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہارر سٹوریز 786۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، پریشانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ واقعات کی طرف بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہارر سٹوریز فیملی کا حصہ بن جائیں۔ آج کی ایپیسوڈ کے واقعات کافی حیران کر دینے والے ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ مت کیجیے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے بعد سپورٹ کے لیے اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو جلدی سے اپنے آس پاس حصار باندھ لیں اور آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب ان مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بڑی دلچسپی سے آپ کے قریب آ جاتی ہیں اور اپنی باتیں سننے لگتی ہیں۔ آج کا پہلا واقعہ ہیرا نے بھیجا ہے، جو پاکستان کے ایک خوبصورت علاقے ہری پور سے بلانگ کرتی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ السلام علیکم رضوان، میرا نام ہیرا ہے اور میں ہری پور کی رہنے والی ہوں۔ میں اکثر رات میں آپ کی سٹوری سنتی ہوں اور روزانہ سوچتی ہوں کہ اپنا واقعہ سٹوری سننے کے بعد شیئر کروں گی، لیکن سٹوری سننے کے بعد مجھے ڈر لگنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے میں فوراً سو جاتی ہوں۔ آج میں شام کے وقت آپ کی ایپیسوڈ دیکھ رہی تھی تو سوچا کہ اپنا واقعہ شیئر کروں۔ میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے میں اسے دوبارہ یاد تو نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میں سمجھتی ہوں یہ بات لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے میرا واقعہ سننے کے بعد آڈینس میں سننے والی میری بہنیں اپنے لیے احتیاط کریں۔ میرے فادر ایک سرکاری ملازم ہیں جو کہ ایک اچھے عہدے پر فائز ہیں۔ ہم 2 بہن بھائی ہیں، ایک میں جبکہ میرا دوسرا بھائی مجھ سے کافی چھوٹا ہے۔ میری والدہ بھی ایک سرکاری ٹیچر تھیں، لیکن میرے بھائی کی پیدائش کے بعد انہوں نے وہ نوکری چھوڑ دی تھی کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ وہ ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ یہ بات 2016 کی ہے۔ میرے فادر کے آفس میں ان کے ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہوا کرتے تھے وہ میرے فادر کے کافی کلوز تھے۔ وہ اکثر میرے فادر سے کہتے رہتے تھے کہ کبھی اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر تشریف لائیں، لیکن مصروفیت کی وجہ سے کبھی ایسا موقع ہی نہیں بن سکا تھا کہ ہم ان کے گھر جاتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلا پوتا دیا تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک بڑا ایونٹ رکھا تھا، جو کہ اصل میں ایک عقیقے کا ایونٹ تھا۔ اس ایونٹ پر انوائٹ کرنے وہ اسپیشل ہمارے گھر آئے تھے، جبکہ آفس میں بھی میرے فادر کو بار بار یاد دلاتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ اب کی بار تم فیملی کو نہ لائے تو میں سخت ناراض ہوں گا۔ ہم لوگوں نے بھی سوچ رکھا تھا کہ ہم ضرور جائیں گے، کیونکہ انہوں نے بہت خلوص کے ساتھ ہمیں بلایا تھا۔ پھر آخر وہ دن آ ہی گیا جس رات ان کے گھر پر عقیقہ تھا۔ اس رات میں بہت شوق سے تیار ہوئی تھی، کیونکہ یہ ایونٹ رات کا تھا اور رات کے جتنے بھی فنکشنز ہوتے ہیں ان فنکشنز پر میں بہت شوق سے جاتی ہوں۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ رات کا ایونٹ میری زندگی میں ایسی مشکلات لائے گا جن کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ ایونٹ ان کے گھر کے لان میں رکھا گیا تھا، جو کافی بڑا اور کھلا تھا۔ اس ایونٹ میں بہت مختصر لوگ انوائٹ کیے گئے تھے، جن میں ان کے قریبی رشتہ دار اور باہر سے صرف ہماری فیملی تھی۔ وہاں پہنچنے کے بعد ان انکل نے ہمیں اپنی بیوی سے ملوایا، جو کہ بہت اچھے اخلاق والی تھیں۔ پھر وہ اپنے بچوں بہو سے ملوانے کے بعد ہمیں اپنی بہنوں سے ملوانے لگے۔ سب سے ملوانے کے بعد ان انکل کی وائف نے ہمیں ایک جگہ بٹھا دیا تھا۔ وہاں سب کچھ بہت اچھا تھا، لیکن ایک بات جو مجھے تنگ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں ایک عورت مجھے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ یہ عورت ان انکل کی بہن تھی جس سے کچھ دیر پہلے ہم ملے تھے۔ ان انکل کی یہ بہن مہینہ پہلے عمان سے آئی تھی اور انہوں نے اگلے دن کی فلائٹ سے واپس جانا تھا۔ یہ سب ان انکل نے ان سے ملواتے ہوئے ہمیں بتایا تھا۔ وہ آنٹی دکھنے میں لگ بھگ 45 سال کی دکھتی تھیں، جو مجھے اتنے غور سے دیکھ رہی تھیں کہ میں وہاں بیٹھے بیٹھے انکمفرٹیبل ہونے لگی تھی، کیونکہ ہر تھوڑی دیر بعد جب میری نظر ان پر پڑتی تھی تو ان کی نظر پہلے سے مجھ پر ہوتی تھی، اور یہ بات میرے لیے بہت ہی عجیب تھی، جو اس ایونٹ کا سارا مزہ خراب کر رہی تھی۔ ایسے ہی وہ ایونٹ چلتا رہا اور کچھ دیر بعد کھانا لگا دیا گیا۔ جب وہ ایونٹ ختم ہوا تو ہم واپس جا رہے تھے۔ میری والدہ سب سے مل رہی تھیں اور سب ہمارے آنے کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔
इसी दौरान वो आंटी भी वहां आ गईं, जो उस पूरे इवेंट में मुझे देखती रही थी। वो आते ही मेरे सर पर हाथ फेरने लगीं, जिसके बाद मेरा नाम पूछते ही ये पूछने लगीं कि अभी तुम कौन सी क्लास में पढ़ रही हो। इस पर मैंने उन्हें बहुत मध्यम सी आवाज में जवाब दिया था, जो उन्होंने ठीक से सुना भी नहीं होगा, क्योंकि मैं उन्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। वैसे भी उन्होंने मेरा वो इवेंट मुझे देख देख कर खराब कर दिया था। उस रात खैर से हम वापस आ गए थे। मेरे पेरेंट्स भी खुश थे कि चलो उनका गिला दूर हो गया, और उन अंकल की फैमिली भी हमारी शिरकत की वजह से काफी खुश हो गई थी। इस बात को 2 महीने गुजर चुके थे। जिंदगी आम दिनों की तरह नॉर्मल चल रही थी कि एक दिन मेरे अब्बू को उनके दोस्त ने कहा कि मैंने आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर उन्होंने मेरे अब्बू को बताया कि मेरी जो बहन ओमान से आई थी वो 2 दिन पहले दोबारा पाकिस्तान आई है और अपने शोहर के साथ आप लोगों के घर आना चाहती है, क्योंकि आपकी बेटी उसे अपने बेटे के लिए पसंद आई है। वो मुझसे जिद कर रही थी कि मैं उसे आप लोगों के घर लाऊं, लेकिन मैंने उससे कहा कि पहले मुझे उनसे बात करने दो, इसलिए आप घर जाकर तसल्ली से मशवरा करें और फिर मुझे जवाब दें। ये सुनने के बाद मेरे अब्बू काफ़ी सोचों में पड़ गए। जब वो घर आए तो काफ़ी परेशान थे। ये बात जब मेरी अम्मी को पता चली तो उन्होंने फ़ौरन इनकार कर दिया। इनकार हम लोगों ने इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त मैंने FSC के एग्ज़ाम्स दिए थे। मैं घर की बड़ी बेटी थी और मैं मज़ीद आगे पढ़ना चाहती थी। इतना जल्दी मेरे घर वालों ने मेरे रिश्ते का कभी नहीं सोचा था। मेरे पेरेंट्स ने ज़्यादा देर नहीं की और उसी रात मेरे फादर ने उन्हें फ़ोन पर सब बता दिया, जिस पर उन अंकल ने इस बात को काफ़ी समझा। इस बात को गुजरे 1 हफ्ता हो चुका था कि एक दिन अचानक हमारे घर की बेल हुई। जब दरवाजे पर देखा गया तो अब्बू के वही दोस्त अपनी बहन के साथ सामने खड़े थे। अब्बू उनको घर के अंदर ले आए और ड्राइंग में बिठा दिया। असल में उन अंकल की बहन हमारे घर आकर हमसे मिलना चाहती थी, इसलिए वो अंकल उनको हमारे घर ले आए थे। फिर उन आंटी ने बताया कि मेरा एक ही बेटा है जिसके लिए मुझे आपकी बेटी पसंद आई थी। बाकी नसीब की बात होती है, सवाल करना मेरा हक बनता था। आगे आप लोगों की मर्जी, आप बच्ची के वालिदैन हैं। मैं आप लोगों को फोर्स करने नहीं आई, मैं तो बस मिलना चाहती थी और अपनी बेटी के लिए ओमान से कुछ लाई थी तो सोचा वो भी देती जाऊं। ये सब बातें मैं भी सुन रही थी और उस दिन वो आंटी मुझे बिल्कुल मुख्तलिफ लगी थी। अकीके वाली रात उनकी आंखों में कुछ अजीब था जिसको मैं बयां भी नहीं कर सकती। आते हुए वो आंटी हमारे घर केक लाई थी, साथ में कुछ चॉकलेट्स थी और एक बहुत प्यारा परफ्यूम था जिसके बारे में उनका कहना था कि वो खास मेरे लिए ओमान से लाई हैं। ये सब देने के बाद उन्होंने इजाज़त मांगी और वापस चली गईं। जाते जाते वो फिर एक बात कर गईं जो मेरे पेरेंट्स को बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा कि एक बार फिर सोच लेना, अच्छा होगा कि आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे को ही दें। ये कहकर उन्होंने एक अजीब सा कहका लगाया था, जिसके बाद फौरन कहने लगी कि अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। ये बात मेरे वालिदैन को बहुत बुरी लगी थी। सबसे ज़्यादा ये बात मेरे वालिद साहब को बुरी लगी थी, क्योंकि उनके दोस्त की वो बहन थी। जब वो आंटी चली गई तो मेरी वालदा इतना गुस्सा हुई कि उन्होंने वो परफ्यूम डस्टबिन में फेंक दिया और उनका दिया हुआ केक बाहर लॉन में परिंदों के लिए रखने जा रही थी कि मेरे फादर उन्हें समझाने लगे कि छोड़ो इन बातों को, ये चीज़ें ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहती हैं, हर एक की अपनी नेचर होती है, बात ख़त्म हो गई है, इसलिए इस बात को भूल जाओ और अपने जहन पे ज़्यादा जोर मत डालो। उस रात हमारे घर का माहौल काफ़ी ख़राब हुआ था, जिसको ठीक होते होते काफ़ी वक्त लग गया था। इस बात को मज़ीद कुछ दिन गुजर गए थे। जो परफ्यूम मेरी वालदा ने डस्टबिन में फेंका था उसको मैंने उठाकर अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया था। एक रोज़ जब मैं उस परफ्यूम को लगाने लगी तो मेरी वालदा ने मुझे बहुत मना किया। कहने लगी कि पता नहीं क्यों इस परफ्यूम से मुझे कुछ अजीब सी वाइब्स आ रही हैं। मैं तो यही कहूँगी कि इसे फेंक ही दो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ होने के नाते तुम्हें कह रही हूँ कि इसे फेंक दो, तुम्हारे अब्बू और ला देंगे। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा कि तुम इसे इस्तेमाल करो। लेकिन उस परफ्यूम की खुशबू बहुत ही अच्छी थी। उस दिन से पहले मैंने कभी इतना अच्छा परफ्यूम इस्तेमाल नहीं किया था। उसे देखकर अंदाज़ा होता था कि ये काफ़ी महंगा परफ्यूम है, इसलिए मैंने उस परफ्यूम को फेंकने नहीं दिया था। मैं उस परफ्यूम को इस्तेमाल करने लगी थी, लेकिन हमेशा अपनी वालदा से छुप कर इस्तेमाल करती थी, क्योंकि वो उस परफ्यूम पर बहुत गुस्सा होती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे साथ कुछ अजीब होने लगा। एक रात जब मैं सोई तो मैंने ख्वाब में देखा कि एक बहुत अजीब सी औरत मेरे कमरे में दाखिल होती है। मैं गहरी नींद सो रही होती हूँ और वो मेरे बेड के सामने खड़े होकर मुझे देख रही होती है।
अचानक वो औरत मेरे बेड से पिलो उठाकर मेरे मुंह पर रख देती है। वो जैसे ही मेरे मुंह पर पिलो रखती है, मेरा उसी वक्त सांस बंद होने लगता है। मैं बहुत ताकत के साथ छुड़वाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो औरत अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। मैं नींद में ये समझ रही होती हूँ कि अब मैं आखिरी सांसें ले रही हूँ और कुछ ही देर में मेरी जान निकलने वाली है। मैं अपने आखिरी लम्हात करीब समझते हुए पहला कलमा पढ़ने लगती हूँ। जैसे ही मैं कलमा पढ़ती हूँ, वो औरत बुरी तरह से चीख उठती है। वो इतना बुरा चीखती है कि ख्वाब में भी उसकी चीख सुनने के बाद मेरी आंख खुल जाती है। उस रात जब मेरी आंख खुली तब मेरी हालत बहुत अजीब हो रही थी। मुझे पसीने आ रहे थे और मेरे दिल की धड़कन काफी तेज हो चुकी थी। मेरी आदत है मैं पानी की बोतल अपने बेड के साथ रखकर सोती हूँ। अगर मुझे उस रात वक्त पर पानी ना मिला होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ होता। जब मैं पानी पी रही थी तो मैंने महसूस किया कि मेरे कमरे के सामने से कोई गुजरा है, लेकिन उस वक्त मैं बहुत डर चुकी थी और मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने कमरे से बाहर निकलती। मैं अपने कमरे में अकेली सोती थी, जबकि मेरा छोटा भाई मेरे पेरेंट्स के साथ सोने का आदी था। उस रात मैं इतना डर चुकी थी कि मैंने उठकर वुजू किया और कुछ नवाफिल पढ़ने के बाद आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते कब सो गई मुझे कुछ पता नहीं चला। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैं अपनी तबीयत को काफी भारी महसूस कर रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे सर पर किसी ने बोझ रख दिया हो। मैं काफी सुस्ती महसूस कर रही थी, जबकि आम दिनों में मैं काफी एक्टिव होती थी। रात वाली बात का जिक्र मैं अपनी वालदा से नहीं करना चाहती थी, इसलिए कि वो सुनकर परेशान ना हो, लेकिन मजबूरन मुझे बताना पड़ा। जिस पर मेरी वालदा ने कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़कर सोया करो और अगर ज्यादा डर लगे तो हमें नींद से जगा दिया करो। अगली रात जब मैं सोने के लिए अपने रूम में गई तो मैंने जो मंजर देखा उसने मुझे हिला कर रख दिया। मेरे बेड पर खून की छींटें थीं जो मेरे बेड से लेकर मेरे कमरे के वॉशरूम तक जाती थीं। ये मंजर देखने के बाद मैं भागकर अपने पेरेंट्स के रूम में पहुंची और उन्हें सारी बात बताई। जब वो मेरे साथ मेरे कमरे में आए तो वहाँ खून का एक कतरा भी मौजूद नहीं था। मेरी बेडशीट बिल्कुल साफ थी और कमरे के फर्श पर खून का नामो निशान तक ना था। मुझे अच्छे से याद है मेरी बेडशीट पर बहुत ज़्यादा खून था, लेकिन वो खून अचानक कहाँ गायब हो गया, ये बात काफ़ी अजीब थी। उस दिन से पहले घर में ऐसा कभी नहीं हुआ था। हमारे घर में अजीबो-गरीब वाक़यात होने लगे थे जो ज़्यादातर मेरे साथ ही पेश आते थे। मैं अक्सर अपनी वालदा से गुस्से में बात कर जाती थी और कभी कभी तो उनसे ऐसी बातें कर जाती थी जिस पर मेरी वालदा बहुत गुस्सा होती थी, और जब वो दोबारा मुझसे उस बात का जिक्र करती थी तो मैं फ़ौरन इनकार कर देती थी कि ये बात मैंने आपसे कभी की ही नहीं है। असल में उस वक्त मैं अपने होशो हवास में ही नहीं होती थी। रोज़ाना रात को जब मैं सोने लगती थी तो मुझे घर की दीवार फलांगने की आवाज़ आती थी। कोई आता था जो मेरे कमरे की खिड़की से मुझे रात भर झांकता रहता था। एक रात जब मैं उसे देखने के लिए अपने बेड से नीचे उतरी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बेड के नीचे से मेरा पाँव पकड़ा है। इसके फ़ौरन बाद ही मैं चीख उठी थी। मेरी ये चीख सुनकर मेरे पेरेंट्स उसी वक्त जाग गए थे और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मुझे उसी वक्त हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं ये बात यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उस रात मेरे बेड के नीचे कोई मौजूद था। मैं आज भी ये लिखते हुए कांप रही हूँ कि जिस हाथ ने मेरी टांग पकड़ी थी उसका हाथ इंतहाई पतला और उसकी उंगलियां बहुत लंबी थीं। एक छोटे से अरसे में मुझ में इतनी तब्दीली आ चुकी थी कि मेरे घर कोई मेहमान आता तो वो मेरी वालदा से ज़रूर कहता था कि हीरा को क्या हो गया है। ये पहले खुश मिजाज हंसने मुस्कुराने वाली थी, अब चुप चुप रहती है और इसका रंग भी पीला पड़ चुका है। मेरे घर वालों ने मेरे सारे मेडिकल टेस्ट करवाए थे। ब्लड सीपी से लेकर जो हो सकता था वो सब हमने करवाया, लेकिन मेरी रिपोर्ट्स हमेशा ठीक आईं। मेरे जिस्म पर नीले निशान बन जाते थे जो कुछ घंटे रहने के बाद गायब हो जाते थे और वही निशान अगले दिन फिर से बन जाते थे। उन दिनों कुछ बातें ऐसी भी हो गई थीं जो मुझे याद भी नहीं हैं। ये सब बातें मुझे बाद में बताई गई थीं। मैं अक्सर अपनी वालदा से उस रिश्ते के बारे में बहस करती थी और उन्हें कहती थी कि ये रिश्ता बहुत अच्छा है जो आप लोगों ने देने से इनकार कर दिया। एक रोज़ तो मैंने उन्हें ये भी कह दिया था कि जब भी मेरा रिश्ता करना सबसे पहले उन आंटी से पूछना, अगर उनसे ना पूछा गया तो मैं कहीं भी शादी नहीं करूँगी। ये वो बातें थीं जिसकी वजह से मेरे वालिदैन की सेहत भी ख़राब हो चुकी थी। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। मैंने रात में अकेले सोना भी छोड़ दिया था क्योंकि मैं सारी रात डरती थी
और मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे मारने का प्लान बना रहा है। कभी मुझे अपनी खिड़की में कोई नज़र आता था और कभी तो ऐसा लगता था जैसे मेरे बेड के नीचे कोई पहले से लेटा हुआ है। मुझे अपने ड्रेसिंग टेबल के शीशों में अजीबोगरीब चेहरे नज़र आते थे जो अचानक गायब हो जाते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे वालिदैन का शक जिन्नात की तरफ चला गया था। उन्हें लगा कि शायद मुझ पर जिन्नात का असर हुआ है, क्योंकि मैं परफ्यूम्स बहुत शौक से लगाती थी। जबकि मेरी वालदा का तो ये भी कहना था कि उस हकीके के बाद से ये बीमार रहने लगी है, हो सकता है इसे किसी की नज़र लगी हो। मेरे वालिदैन ने मुझ पर दम करवाने का फैसला किया। हमारे घर के करीब मस्जिद से जब इमाम साहब को हमारे घर बुलवाया गया तो उन्होंने हमारे घर में दाखिल होते ही बता दिया कि हमारे घर पर बुरे असरात हैं। हमारे घर पर जायज़ा लेने के बाद उन्होंने मुझ पर वक्ती दम तो कर दिया, लेकिन ये भी बताया कि इसका इलाज अभी उनके पास भी मौजूद नहीं है। वो इस चीज़ का इल्म तो रखते हैं, लेकिन जो असरात हमारे घर पर हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं और इसका इलाज उनके उस्ताद कर सकते हैं जो कि मनसेरा में रहते हैं। जब उनके उस्ताद से रब्ता किया गया तो हमारी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उनके उस्ताद पिछले 2 दिनों से हरीपुर की ही एक मस्जिद में आए हुए थे, जहां उन्होंने मज़ीद कुछ दिन और रहना था। उनके उस्ताद एक बहुत अच्छे आमिल थे जो अगले दिन ही हमारे घर तशरीफ़ ले आए थे। जब वो हमारे घर आए तो उन्होंने जो बातें बताईं वो हैरान कर देने वाली थीं। उन्होंने बताया कि हमारे घर में काले जादू के असरात हैं जो काफ़ी फैल चुके हैं। जब उन्होंने मुझे देखा तो देखते साथ ही बता दिया कि सारा जादू इस बच्ची पर करवाया गया है, जो बच्ची के साथ साथ पूरे घर में फैल चुका है। उस जादू के सबसे ज़्यादा असरात मेरे कमरे में थे, जो मेरे कमरे की बेडशीट से लेकर मेरी अलमारी के कपड़ों तक फैल चुके थे। जो परफ्यूम उन आंटी ने गिफ्ट दिया था वो परफ्यूम वो आमिल साहब अपने साथ ले गए थे। उसी दिन से मेरा इलाज शुरू किया गया, जिसके बारे में उन आमिल साहब ने पहले से बता रखा था कि शुरू के 3 दिन काफ़ी सख्त होंगे। जब मेरा इलाज शुरू किया गया तो पहली 2 रातें तो मुझे ऐसे महसूस होता था जैसे रात होते ही हमारे घर के इर्द गिर्द लोग जमा हो जाते हैं जो मौका देखकर मुझे अगवा करना चाहते हैं। तब मैं अपनी वालदा के साथ होती थी और इस खौफ की वजह से मैं सारी रात जागती थी, क्योंकि मुझे बाकायदा उनके बातें करने की आवाज़ें सुनाई देती थीं, जो कि असल में शयातीन जिन्नात होते थे जो मुझे डराने के मकसद से मेरे घर के बाहर आ जाते थे। वो असरात मुझ पर इतने गहरे थे कि मैं पहली 3 रातें तो अकेली वॉशरूम भी नहीं जा सकती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं वॉशरूम चली गई तो मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। उन दिनों मुझे अपने घर के लॉन में एक औरत भी नज़र आती थी जो हाथ में मिट्टी का मटका उठाए मुझे मुस्कुरा कर देख रही होती थी। जब उसके बारे में मैं अपनी वालदा को बताती थी तो उनका कहना होता था कि वहाँ कुछ भी नहीं है, और फिर मेरी वालदा वही आयात पढ़ने लग जाती थीं और जो कुछ उन आमिल ने बता रखा था वो सब करने लग जाती थीं और फिर मुझे दम वाला पानी पिला देती थीं। ये इलाज 14 दिन का था, जिसमें से 7 दिन तो वो आमिल हरीपुर में ही रहे थे जो हमारे घर आते जाते रहते थे, लेकिन उसके बाद वो वापस मनसेरा चले गए थे, जिसके बाद हमारा उनसे फ़ोन पर रब्ता रहा था। ये जादू इंतहाई गहरा था। उस दौरान हमने किन किन मुश्किलात का सामना किया ये मैं बता भी नहीं सकती। आहिस्ता आहिस्ता वो जादू कमज़ोर पड़ता गया और फिर एक दिन ऐसा आया कि अल्लाह के फजलो करम से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उन आमिल साहब ने इस बारे में हमें ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं दी थी, लेकिन ये ज़रूर बताया था कि इस बच्ची पर काला जादू था। उन्होंने ये भी बताया था कि इसका इलाज अगर वक्त पर ना किया जाता तो ये बच्ची अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकती थी, और ये भी मुमकिन था कि ये अपने वालिदैन को भी नुकसान पहुंचाती। जब एक तवील अरसे के बाद उन आमिल साहब के शागिर्द मेरे वालिद को मिले, जो कि मस्जिद के इमाम साहब भी थे, तब उन्होंने जो बात मेरे फादर को बताई वो वाकई हैरान कर देने वाली थी, जिसको सुनने के बाद हमारे सारे शक यकीन में बदल गए थे। उन्होंने बताया कि आपकी बेटी पर जिन्होंने जादू करवाया था वो आपकी बेटी का रिश्ता लेना चाहते थे, जिन्होंने उस परफ्यूम के ज़रिए वो बुरे असरात आपके घर भेजे थे, जिसका सबसे ज़्यादा असर आपकी बेटी पर हुआ क्योंकि वो उस परफ्यूम को इस्तेमाल करती रही थी, और जहाँ जहाँ उस परफ्यूम की खुशबू जाती रही वहाँ वहाँ वो असरात फैलते रहे। अगर आप इलाज में थोड़ी सी भी देर करते तो कुछ भी हो सकता था। इन वाक़यात के गुजरने के बाद मेरे फादर ने अपने उन दोस्त से बिल्कुल दूरी इख्तियार कर ली थी, जिसके 2 साल बाद उनके वो दोस्त ऑफिस से रिटायर हो गए थे। मेरे फादर को महसूस हो गया था जैसे वो इस बारे में जानते हैं
और मेरे फादर को काफ़ी बात पता चला था कि वो जादू उन आंटी ने ओमान से करवाया था, लेकिन मेरे फादर ने आज तक हमें ये नहीं बताया कि उन्हें ये मालूमात कहाँ से मिली। इस वाक़े के बाद मैं ठीक तो हो गई थी, लेकिन मुझे मुकम्मल ठीक होते होते 1 साल लग गया था। इस वाक़े की वजह से हमारी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात आई थीं। हमारे वालिदैन की हर बात में बेहतरी होती है, वो जो कुछ कहते हैं हमारे अच्छे के लिए कहते हैं। उस दिन मैंने वो परफ्यूम डस्टबिन से ना उठाया होता या उस रात में अपनी वालदा की बात सुनकर मना हो जाती और वो परफ्यूम फेंक देती तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वाक़े से सुनने वालों को भी सबक मिला होगा। आपकी एपिसोड्स बहुत अच्छी होती हैं, ऐसे ही हमारे लिए मज़ीद एपिसोड्स बनाते रहें। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की एपिसोड के आखिरी वाक़े की जानिब। ये एक शॉर्ट सा वाक़या है जो कि हमारी एक बहुत अच्छी लिसनर तैयबा ने डेरा गाजी खान से भेजा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, मेरा नाम तैयबा है और मैं पंजाब के इलाके डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखती हूँ। जो वाक़या मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये वाक़या कोरोना के लॉकडाउन से 1 माह पहले का है। ये मेरी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या है जिसको सुनकर आप भी खौफज़दा हो जाएंगे। उस रात मैं बस में डेरा गाजी खान से इस्लामाबाद का सफ़र कर रही थी। असल में इस्लामाबाद में मेरी खाला की बेटी की कॉन्वोकेशन थी जो हाल ही में ग्रेजुएट हुई थी। मैंने उससे वादा कर रखा था कि मैं उसकी कॉन्वोकेशन पर ज़रूर आऊँगी। ये सफ़र मैं अकेले कर रही थी। मेरे फादर ने मुझे टर्मिनल से बस पर बिठा दिया था और मेरे खालू को भी इन्फॉर्म कर दिया था, जिन्होंने मुझे सुबह टर्मिनल से पिक करना था। जैसा कि मैं अकेली फ़ीमेल थी, इस वजह से मुझे बस की फ्रंट सीट दी गई थी, जो आमतौर पर अक्सर लेडीज़ को दी जाती है। मेरे साथ भी एक लेडीज़ थी जो मेरी तरह अकेले सफ़र कर रही थी। उनकी सीट ड्राइवर से बिल्कुल पीछे विंडो वाली साइड पर थी, जबकि मेरे पास बस का फ्रंट व्यू था। तब रात के 2 से 2:30 बजे का वक्त था जब बस एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी। हम जीटी रोड से सफ़र कर रहे थे और आसपास कोई आबादी भी नहीं थी। जिस सड़क पर हम सफ़र कर रहे थे वो काफ़ी सुनसान थी। हमारी बस की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी कि अचानक हमारी बस के सामने 2 लोग आ गए। रफ्तार तेज़ होने की वजह से बस ड्राइवर को ब्रेक लगाने का मौका ही नहीं मिला था, लेकिन फिर भी उसने उसी वक्त ब्रेक लगा दी थी। ये इतना खौफनाक मंजर था कि उस वक्त जो लोग जाग रहे थे वो सब चीख उठे थे। बस उसी वक्त रोक दी गई और सब लोग बस से बाहर निकलकर उन्हें देखने लगे। लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जब बस से बाहर निकलकर देखा गया तो सड़क पर किसी भी चीज़ का नामो निशान तक न था। इस वाक़े की वजह से हम लोग आधा घंटा उस सड़क पर रुके रहे, लेकिन हमें वहाँ कोई भी नहीं मिला। सड़क से भी हटकर खेतों की जानिब दूर दूर तक तसल्ली की गई, लेकिन वहाँ ऐसा कोई सुराग न मिल सका जिससे साबित हो सके कि हमारी बस के नीचे कोई आया है। ये वो बात थी जो मुझ समेत उस पूरी बस के मुसाफिरों को खौफजदा कर रही थी। फिर उस बस में कोई बुजुर्ग भी मौजूद थे जो काफ़ी बूढ़े थे। वो ये सब खामोशी के साथ देख रहे थे। फिर उन्होंने सबसे कहा कि कोई बात नहीं, आप सब बस में आएं और अल्लाह का नाम लेकर आगे का सफ़र जारी करें। कुछ इलाके, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो पुरस्रार होती हैं, और अभी हम जिस इलाके में रुके हैं ये इलाका वैसे भी वीरान है, तो मुमकिन है कि किसी गैर मरई मखलूक का गुजर हो रहा हो जो अचानक से हमारी बस के सामने आ गई हो। उनकी इस बात से सबने इत्तफाक किया और उस रात वो सफ़र दोबारा जारी किया। मैंने उस मखलूक को अपनी आंखों से देखा था। वो 2 लोग थे जिनके कद बहुत बड़े थे, और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वो दोनों झुककर चल रहे थे और उन दोनों के एक एक बाजू अपनी कमर पर थे। ये मेरी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या था, इस वाक़े के साथ साथ मैं इस मंज़र को सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊंगी। मैं हिरा और तैयबा का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपने वाक़यात हम तक पहुंचाए। अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद एपिसोड्स आती रहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर एपिसोड आप सब तक आसानी से पहुंच पाएगी। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हैं।
इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।